Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. सोनाली बेंद्रे ने क्रिएट की हेडलाइन, कहा सलमान को नहीं मानती अच्छा दोस्त, नहीं एक्सपेक्ट कर रही अर्पिता का वेडिंग इनविटेशन। केबीसी के ग्रैंड फिनाले में एक्शन जैक्सन को प्रमोट करने आए अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा ने की जमकर मस्ती। रॉ स्टार के सेट्स पर सैफ बन गए रॉक स्टार। सैफ ने गिटार प्ले कर किया सबको एंटरटेन। 68 साल की उम्र में डायरेक्टर रवि चोपड़ा का हुआ निधन। अंतिम दर्शन के लिए जुटे कई बॉलीवुड स्टार्स। हेमा मालिनी बनी एक बॉलीवुड इंस्पायर्ड टाउनशिप की ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही ले चलेंगे क्लासिक फिल्म गरम हवा की स्पेशल स्क्रीनिंग पर। I'm not even expecting to be invited. I don't think we're that close. सोनाली बेंद्रे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं सलमान की सिस्टर अर्पिता का वेडिंग इनविटेशन। I'm not even expecting to be invited. I don't think we're that close. सलमान के साथ फिल्म हम साथ साथ में काम कर चुकी सोनाली को सलमान में नजर नहीं आता अपना दोस्त। बॉलीवुड के जिस दबंग के खिलाफ खुलकर बोलने में कतराते हैं स्टार्स, उन्हीं सलमान के साथ अपने रिलेशंस पर ब्लंटली बोल गई सोनाली बेंद्रे। You know, Salman is an amazing actor and an amazing star, and I really enjoy watching him, and we've worked together. But I can sometimes say that Saif is a friend. I don't know if I can say that about Salman. Oh God, please don't make this a headline. But there are different levels of. We've had a great professional relationship, and I really look up to him. I admire what he does. But I don't think we're that close, so I'm not even expecting to be invited. I don't know them that well. सैफ और पूरी मीडिया के सामने बेधड़क सलमान के साथ अपनी अच्छी रैपो ना शेयर करने की बात कहकर सोनाली चर्चा में आ गई हैं, या फिर यूं कहिए सोनाली ने अपने टीवी सीरियल अजीब दास्तां है ये को भी चर्चा में ला दिया है, जिसके सेट्स पर अपनी फिल्म हैप्पी एंडिंग को प्रमोट करने आए थे सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज। It's a wonderful show and it's such a popular show. We're looking forward to doing a good show. The writers of this show are also so talented that it's actually been integrated really well. I was impressed with how easily it's mixed in, so we won't disrupt your show. Interestingly, यहाँ जब सोनाली और सैफ ने अपनी पिछली कुछ फिल्मों कीमत, हम साथ साथ हैं और लव के लिए कुछ भी करेगा के दौरान हुई बॉन्डिंग के किस्से सुनाए। Sonali has been one of my favorite co-stars and also a friend. We've always enjoyed working together and we've had a good laugh and we've known each other for a very long time. इस शो का प्रोमो E-Nivas ने डायरेक्ट किया and the last film that we did together was E-Nivas's. Yes, Love के लिए कुछ भी करेगा. Love के लिए कुछ भी करेगा. We had a blast and we laughed our heads off. So I was really thinking of him. Just recently, somebody was talking about it and they said, you know, from all the actors you've worked with, who do you think has evolved the most? And I had said Saif. Oh, sweet. Because I really, you know, it was really early days that we started working. Both of us were hating what we were doing. Remember those Lonavala or Panchgani in the Top Life when we were doing the songs, and both of us were totally hating. What are we doing? What is this? We did a good song also in that film. Yeah, but we were hating that part of it, and then. And from there to some of the wonderful films that he has done. We are sure कि आप दोनों की क्लोजनेस से इस इंटरव्यू के लिए आए बाकी एक्टर्स यानी इलियाना डिक्रूज और अपूर्वा अग्निहोत्री जरूर लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे, क्योंकि इन बेचारों को इस पूरे इंटरव्यू में आप दोनों ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। इलियाना और अपूर्वा शायद इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दे सोनाली, बट वी आर श्योर सलमान शायद ही आपके इस कमेंट को इग्नोर करे। I don't think we're that close. अब देखना ये है कि आपके इस कमेंट पर सलमान का क्या रिएक्शन आता है।
डीजे की बीट सुनते ही कंट्रोल ये दिल का होता है, अपना एंटरटेनमेंट शोर शराबे से ही होता है। केबीसी के ग्रैंड फिनाले में फिल्म एक्शन जैक्सन को प्रमोट करने आए अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और डायरेक्टर प्रभु देवा। तो कितनी मस्ती हुई केबीसी के सेट्स पर, आप भी देखिए। ना कमिटमेंट, ना अपॉइंटमेंट, ओनली पनिशमेंट। प्रभु सर, आप मेरी नकल कीजिए। अच्छा, आई लाइक यू। हाँ, या इमिटेट लाइक। Oh, imitate like me. I will say some things और आप उसका बोलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। आई विल ट्राई। हाँ, ठीक है। हमारे ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। यस। जैसे मैं यहाँ से प्रवेश करता हूँ मैं कहता हूँ आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति। It's too tough, sir. हैं? Too tough, sir. Okay, I'll say slowly. But outside he was saying कि he wants to do the be in your chair. हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उनको होस्टिंग के काफी ऑफर्स आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपसे तो सीखना थोड़ी चाहते हैं, ट्रेनिंग क्योंकि आपसे आप लेना चाहते हैं सबसे वो। जो सर्वश्रेष्ठ होस्ट आप हैं, तो आपसे ये सीखना हमारी चाहते कुर्सी लेना चाह रहे हैं? नहीं, आपसे ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। बैठ जाइए भाई साहब, वहीं बैठ जाइए, बैठे रहिए आप वहीं। यहाँ पर आने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छे खासे यार पेट पे लात मार रहे हैं तो हमारे। ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं, मैं ट्रेनिंग बिल्कुल अभी मैंने बताया ना कैसे इनको आदर आदाब अभिनंदन। अच्छा, इसको मैं स्लोली बोलता हूँ प्रभु। आदर आदाब अभिनंदन आभार। आदर आदाब अभिनंदन आभार। आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूँ कौन बनेगा स्लो मोशन में बोला, कौन बनेगा महाकरोड़पति। मैं अमिताभ बच्चन पेश करना चाह रहा हूँ। पेश नहीं यार, पेश पेश। पेश। मैं अमिताभ बच्चन पेश करना चाह रहा हूँ। चाह रहा हूँ नहीं, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। या मैं अमिताभ बच्चन पेश करना जा रहा हूँ महाकरोड़पति। कौन बनेगा महाकरोड़पति? कौन बनेगा महाकरोड़पति? या मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली। जी तुसी सच्चा पुसी कैट, उल्लू तपट्ठा तो पट्टियां उल्टैट, ऐवें करदा रंदा जुगनू चैट, ओ पासी तुसी सच्चा पुसी कैट। इंडियाज रॉस्टार के सेट्स पर हैप्पी एंडिंग को प्रमोट करने आई फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। सैफ अली खान ने रॉक स्टार बनकर और इन सिंगर्स ने कैसे जीता ऑडियंस का दिल, आइए आपको दिखाते हैं इस शो की एक खास झलक में। लंबी लंबी बड़ी होके एन मोगे बैरी साला पुस, बैड लगने दिया तोहफा, खोल गए हो गया खुश, अपनी बर्बादी का सायरन सुन के भी बेशरम पूछे व्हाट इज दैट दैट दैट। और बाजी तुसी सच्चा पुसी कैट, उल्लू तपट्ठा टोटल स्पॉइल्ड ब्रेड, और ऐबन करता रहंदा चिकन चैट। और बाजी तुसी सच्चा पुसी कैट। थैंक यू।
प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा के बेटे और आदित्य चोपड़ा के कजन भाई रवि चोपड़ा का वेडनेसडे दोपहर 3:30 बजे निधन हो गया। पिछले कुछ सालों से सीवियर लंग एलमेंट से जूझ रहे थे डायरेक्टर रवि चोपड़ा और इसी बीच 68 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने कल दम तोड़ दिया। इसके बाद उनके बांद्रा के घर पर बॉलीवुड के उनके करीबियों का आना शुरू हो गया, जिनमें उनके चाचा यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा और उनकी वाइफ रानी के अलावा रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर जैसे कई यंग एक्टर्स भी पहुंचे थे। लेकिन आज यानी कि थर्सडे को सुबह 11:30 बजे उनके अंतिम संस्कार पर और भी कई सारी बॉलीवुड हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंची और सभी ने रवि चोपड़ा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। महाभारत जैसी एपिक टीवी सीरीज डायरेक्ट करने वाले रवि चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपना डायरेक्शन शुरू किया था 1975 की फिल्म ज़मीर से। इसके बाद 1980 में उनकी फिल्म द बर्निंग ट्रेन ने उन्हें काफी अप्रिसिएशन दिलाया और तब से लेकर अब तक करीब 12 फिल्में डायरेक्ट कर चुके रवि चोपड़ा ने हमें कई और हिट फिल्में दी, जिनमें 2003 में आई उनकी फिल्म बागबान के लिए उन्हें आईफा अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। इसके साथ ही 2006 में आई उनकी आखिरी डायरेक्टोरियल वेंचर बाबुल को भी काफी अप्रिशिएट किया गया और उनके इसी काम और मेहनत के बलबूते पर आज बॉलीवुड के वेटरन्स से लेकर यंग एक्टर्स तक हर कोई उनके जाने के गम में डूबा है और उन्हें याद कर रहा है। May his soul rest in peace. हेमा मालिनी बन गई हैं एक बॉलीवुड इंस्पायर्ड रेसिडेंशियल टाउनशिप की ब्रांड एम्बेसडर। और इस बात की अनाउंसमेंट करने के लिए रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां हेमा जी ने शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। फॉर द लास्ट मेनी इयर्स मेनी प्रोजेक्ट हैज बीन कमिंग टू मी टू बी द ब्रांड एम्बेसडर टू मेनी ऑफ दिस रियल एस्टेट, बट गुड आई डिड नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ देम। I'm happy I'm associated with you. और साथ ही ये भी बताया कि अपने यंग डेज में वो किस एक्टर का घर देखने के लिए एक्साइटेड थी। जब पहले मैं भी आई थी सपनों का सौदागर की शूटिंग में, तो एक दिन मैंने कहा, एक दिन छुट्टी मिली थी, मुझे भी सब आर्टिस्ट का घर देखना है, तो मुझे सारा घुमा के दिखाया। उस पर बहुत कम देखने को मिला। आई थिंक पाली हिल में थोड़ा सा कुछ घर, ये दिलीप साहब का घर है, ये ऐसा कुछ दिखा है, प्राण जी का। साथ ही इस इवेंट पर हेमा जी हो गई थोड़ी नॉस्टैल्जिक और अपने पहले घर से जुड़ी यादें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। अराउंड 68-70 में मेरे डैड ने घर लिया वाल्केश्वर में और मुझे मालूम भी नहीं था बिकॉज आई वाज सो बिजी शूटिंग। एंड देन ही सेड यहाँ पर पूजा के लिए आ जाओ, तो मम्मी डैडी और मुझे लेके गए। So I saw it, it was a very huge flat facing the beach, everything was so wonderful. But I was not comfortable at all. I said, no, I don't like it. So my father got a shock, what is it you want? I said, I want a house where there will be a lot of trees, you know, lot of surroundings should be green. That's why then my Juhu house was bought, so many years back. Mathura also I love it very much because, you know, when you go into the villages and all, It's so nice and lovely to meet all the villagers. बहुत अच्छा लगता है। Well, मथुरा से तो इन्हें प्यार होगा ही। After all, ये मथुरा की MP जो ठहरी और एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन की तरह हेमा जी ने मथुरा वासियों के लिए जाहिर कर दी अपनी एक ख्वाहिश। Since I am the
MP of Mathura now. So I have little desire that when you can make such an affordable prices flats for people, so you must make something like that in Mathura and surroundings also. Well, आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी होती है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपके नोबल थॉट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं। Posmita Isle, Zing, Mumbai। ये है फिल्म गरम हवा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां फिल्म को सपोर्ट करने आए कई बॉलीवुड स्टार्स लाइक जावेद जाफरी, गौहर खान, ईशा देओल, दिव्या दत्ता एंड मोर। गरम हवा ये क्लासिक फिल्म सेट है इंडिया पाकिस्तान के पोस्ट पार्टीशन टाइम्स पर, और इस डिजिटली रिस्टोर्ड क्लासिक के बारे में हियर्स व्हाट द गेस्ट्स हैड टू से। ये हमारी हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म है। मैं बहुत छोटा था जब देखी थी, लेकिन उसने मेरे जहन में एक जगह बना ली थी। कई चीज़ें याद थी, उसमें मोमेंट्स याद थे मुझे। बलराज साहनी साहब का काम बहुत कमाल का काम था उसमें, तो ये फिर ताज़ा करने आया हूँ। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ इसको। गरम हवा अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्ट फिल्म है, और मतलब हमने तो देखी है, लेकिन हमारे जो मेरी मम्मी है ख़ास, वो देखने आई हैं इस फिल्म को दोबारा से। हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत फिल्म, एक बहुत प्यारी फिल्म, एक आई ओपनर, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है। सो इट्स रियली नाइस टू वॉच इट in a very new way. Well, तो ये रही a special screening of 1974 classic गरम हवा। उम्मीद करते हैं कि इस क्लासिक फिल्म को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखना इन स्टार्स के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस रहा होगा। हमसा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम। और अब आपको दिखाते हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सक्लूसिव हाईलाइट, जिसे आप देख पाएंगे फ्राइडे को शाम 7 बजे ओनली ऑन जिंग। आई होप के दीनानाथ जी की विल में लिखी सारी कंडीशंस तुमने अच्छी तरह समझ ली होंगी। आर यू सीरियस अंकल? आपका मतलब है कि मैं अपना स्कूल छोड़कर किसी सैड से तुकाराम स्कूल में एडमिशन ले लूं? और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे 1 साल तुम्हें इसी चौल में रहकर अपनी स्कूलिंग पूरी करनी होगी। काका पानी नहीं आ रहा है। उस दिन मैं तुम्हें यही बताने वाली थी कि पानी किस वक्त आता है और किस वक्त नहीं, जब तुमने मेरी बात आधी काटकर मुझे अपनी कोली से बाहर निकाल दिया था। थैंक्स अ लॉट मुझे आइवा और उसके दोस्तों से बचाने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी रेपुटेशन ना बड़ी सॉलिड है। अब तुम्हें यहाँ पर कोई तंग नहीं करने वाला। वैसे तुम इतनी डेंजरस तो नहीं दिखती हो। थैंक गॉड, तुम्हें स्माइल करना भी आता है? हाँ आता है, लेकिन पता मुझे क्या नहीं आता? खाना बनाना। थमसा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो तुम। तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है या मुझे है प्यार हो रहा। क्या बात है अमृता, तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने इसका जवाब भी नहीं दिया। मैं कैसे बताऊं तुम्हें बाजू, मेरे पास नहीं है इन सब चीजों के लिए टाइम। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.